اور کوئی لاؤ، اور کوئی لے لیں، اور کوئی موبائل، اب وہ لگائیں جنون. اب کوئی چھیڑے نہیں اس کو، آپ نے دیکھتے رہنا بس یہیں پہ، ٹھیک ہے؟ ہلے نہیں، پاؤں آپ نے دیکھتے. یار نمی کام ہے کوئی درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے. خاموشی بیٹا. السلام علیکم جی، سب نے میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے. پاکستان پاکستان قائد اعظم. ویری گڈ، شاباش. آج بچوں، آج ہمارا یہ پروگرام ہے 25 دسمبر کے حوالے سے. جس تاریخ کے حوالے سے ہے کوئی بتائے گا 25 دسمبر کس کا یوم پیدائش ہے؟ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. اسی لیے بیٹا اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم قائد. یوم قائد. ویری گڈ. تو بچے، آج ہم اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک نام سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے. آپ سب سے گزارش ہے کہ خاموش رہیے گا اور باادب بیٹھیے گا. جہاں آپ بیٹھے وہاں بیٹھے رہیے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے رہیے گا. ادب و احترام سے آپ نے تلاوت کلام پاک کو سننا ہے. جی، تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ احتشام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. جی آپ نعت شریف کے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی تو بچوں آج کے دن کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آپ سب نے ایک بار پھر جوش و خروش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ نعرہ مارنا ہے. اسپیشل ایک نعرہ مارنے کے لیے آج ہمارے ایک دوست ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں. آئیے جی ان کے ساتھ آپ نے نعرہ مارنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, پاکستان زندہ باد. شکریہ جی. اب میں طاہر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ چند کلمات حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام اساتذہ کرام, عزیز طلباء, السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ سیرمنی جو ہے وہ 25 دسمبر برتھ ڈے آف قائد اعظم ہے, اس حوالے سے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. میں اس حوالے سے اس سیرمنی کو مینٹین کرنے مینیج کرنے کے لیے جناب ثناء اللہ صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور وہ تمام طلباء جو یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے
इस प्रोग्राम को अरेंज करने में उनकी मुआवनत की है, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से दाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस अजीम दिन को याद रखा और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ इसको मनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत की। इस तरह की तकारीब जो हैं वो स्कूल की हम नसाबी सरगर्मियों में शामिल हैं। इन तकारीब का होना तालीम का और तरबियत का एक हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सनाउल्लाह साहब और उनकी टीम, जिनमें आप तलबा भी शामिल हैं और दीगर जो भी मुआवनीन हैं उनके, वो इस तरह की रिवायत को आइंदा भी बरकरार रखें इंशाअल्लाह। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मैसेज ऑफ द डे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बात कायद-ए-आज़म के दिन के हवाले से है, तो मैं बात आपको मुख्तसरन गोशगुजार करूंगा कि कायद-ए-आज़म जब पैदा हुए तो कायद-ए-आज़म नहीं थे। ये मोहम्मद अली से कायद-ए-आज़म तक का जो सफ़र है, ये इंतहाई जानिसारी और जाफिशानी से इबारत है। इसमें मोहम्मद अली ने कायद-ए-आज़म बनने के लिए दिन रात मेहनत की, और ये भी आप लोगों के लिए कि कायद-ए-आज़म इन लफ्ज़ों पर गौर करना है। कायद जो है वो इंग्लिश में लीडर के लफ्ज़ के लिए उर्दू में मुस्तामल है। कायद का मतलब है, इंग्लिश में हम लफ्ज़ बोलते हैं लीडर, और कायद का उर्दू में कायद से मतलब है रहनुमाई करने वाला, रहबर। और आज़म से मुराद है बड़ा। कायद-ए-आज़म से मुराद क्या हुआ? एक बड़ा, बहुत बड़ा रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। तो मोहम्मद अली जो हैं वो इस दुनिया में खाली हाथ पैदा हुए, मगर जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो कायद-ए-आज़म जैसी अजीम नेमत से अपने हाथों और दामन को भरकर यहाँ से रुखसत हुए। तो आपके लिए भी मेरी तरफ से ये मैसेज है मुख्तसरन कि आप जिस नाम से भी पैदा हुए, बेशक आपके हाथ खाली हैं, मगर ये कोई अफसोस की बात नहीं। अफसोस की बात ये है कि इंसान खाली हाथ तो पैदा होता है, मगर इस दुनिया से रुखसत भी खाली हाथ हो जाए, इस दुनिया को कुछ ना देकर जाए, अपने मुआशरे की तरक्की के लिए कुछ भी ना करके जाए, ये अफसोस की बात है। तो कायद-ए-आज़म ने ये चीज़ें जो हैं अमली तौर पर करके दिखाई। उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक मुख्तसर से वक्त के अंदर एक आज़ाद मुल्क जो मुसलमानों की अक्सरियत पर मुश्तमिल था, वो हमें दिला कर गए। और ये बात आइंदा नस्लों के लिए और पैगाम छोड़ कर गए हैं कि काम, काम और काम। यानी हमें अपनी ज़िंदगी जो है उसे डेडिकेट करना है, कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ, वक्त को ज़ाया नहीं करना, और दिन रात इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें दीदा दलेरी के साथ करना है। वक्त उन लोगों की कदर नहीं करता जो लोग वक्त की कदर नहीं करते। हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए कायद-ए-आज़म के इस फरमान पर अमल करते हुए कि काम, 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 मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, और ईमानदारी के साथ और अपनी ज़िंदगी को वक्फ करके इस मुल्क के लिए हर वक्त तालीम और तरबियत में दिलचस्पी लेकर अपनी तालीम को बेहतर करना है, असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि ये इल्म के बाब है, दरवाजे हैं। और अगर ये दरवाजे बंद हो जाएं, यानी ये लोग आपसे रूठ जाएं, तो कायद-ए-आज़म का फरमान कि काम, काम, काम और इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, ये सारे जो फरमान हैं ये बेसूद हो जाते हैं।
बेकार रह जाते हैं। मेरा आपके लिए पैगाम ये है कि कायद आज़म के इन फरमात पर अमल करते हुए खुद को एक लीडर की शक्ल में पेश करने की कोशिश करें और उसके लिए अपने मकासद जो हैं उनको तय करें और उन मकासद पर फिर काम में लग जाएं। जो लोग रास्ते चुन लेते हैं और मंजिल को तय कर लेते हैं वो लोग यकीनन कामयाब होते हैं और अपनी मंजिल मकसूद पर अब बिल आकर पहुँच कर रहते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबो कामरान करे और आप सदा इसी तरह मेहनत करते रहें और जुड़ कर रहें और कायद के फरमान पर अमल करते रहें। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी बात दोबारा से मैं कर दूं, सनाउल्लाह साहब की ये जो काबिल और कोशिश है मैं इस पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ और आप सब अजीज़ों को जो आप बैठे हैं और जितने मामलीन हैं इस रिवायत को आप कायम रखेंगे इसके लिए दुआ भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, दुआ कीजिएगा तो ये काम चलता रहा। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इतनी अजीम शख्सियत है कि उनकी शान में बयान करना मेरी औकात नहीं है, तो इसलिए मैं एक अजीम हस्ती का सहारा लूँगा और उन्हीं के अल्फाज को दोहराऊँगा। और वो अल्फाज हमने आज यहाँ पे लिखे हुए हैं सब बच्चों के लिए सुबह से, ताकि आते जाते हर बच्चा देखे। तो मेरी औकात नहीं है तो मैं वो शेर पढ़ दूँगा जो उन्होंने पढ़ा है लीडर्स के लिए। और यकीन करें कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उसकी जीती जागती तफसीर है। और बेटा आप सब ने वो शेर गौर से सुनना है। वो शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। ये थे वो कायद आज़म के लिए अल्फाज जिनके ऊपर वो 110% थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हीं से सबक हासिल करेंगी और इंशाअल्लाह दुनिया के लिए रहनुमा पैदा करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर एक बार फिर आप सबने नारा मारना। ये आप ही आइए, आपने भी नारा मारना। तैयार हैं सब लोग? पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्लैप इट करते हैं। अब आप लोगों ने इंतहाई डिसिप्लिन और तरतीब के साथ उठ के अपने अपनी क्लासों में चले जाना है। याद हो चलो ये इधर से बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो।